श्रीमती पल्लवी प्रशांत होलकर, सचिव साहित्य अकादमी से निवेदन है, आप कृपया मंच पर अपने स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर माधव कौशिक, अध्यक्ष साहित्य अकादमी से निवेदन है, आप कृपया माननीय मुख्य अतिथि प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित का अभिनंदन करें। Respected Sri Surya Prakash Dikshit ji, Chief Guest of this program, Dr. Madhav Kaushik ji, President Sahitya Academy, Professor Kumud Sharma ji, Vice President Sahitya Academy, all the award winners and friends. It is my honor to welcome all of you for this ceremony to present Sahitya Academy Yuva Puraskar 2025. I join everyone present here in congratulating all the award winners. सादर नमस्कार। परम आदरणीय हमारे अग्रज भ्राता श्री प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी, प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी, हमारी उपाध्यक्ष सचिव पल्लवी होलकर जी, सभी पुरस्कार विजेता युवा रचनाकारों, हमारे सभी गणमान्य सदस्य जो सामान्य परिषद और ईबी के सदस्य भी हैं, और पूरे देश से आए रचनाकार मित्रों। साहित्य अकादमी जब भी आयोजन करती है साहित्य उत्सव में पुरस्कार वितरण समारोह, हम कई भाषाओं में 24 भाषाओं के जो रचनाकार हैं उनको सम्मानित करते हैं, लेकिन जिस दिन युवा पुरस्कार का होता है उस दिन हमें ज़्यादा उमंग का अनुभव होता है। हमें लगता है कि हमारी भावी पीढ़ी साहित्यकारों की ऐसी पीढ़ी जो बिल्कुल नई है, जिसमें भाषा की ताजगी है, वो सब जो समाज में आज घटित हो रहा है उसको हम जैसे सीनियर लोग नहीं समझ पाते, लेकिन युवा अपनी नई भाषा से, नए सरोकारों से, नए तथ्यों से और नए कथ्यों से हमारे सामने लेके आते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं आप सबको बधाई तो देता ही हूँ, हार्दिक अभिवादन और अभिनंदन भी करता हूँ। अंत में आप सबको बहुत बहुत साधुवाद अभिवादन करते हुए मुझे अपनी कविता की एक पंक्ति याद आ रही है कि इसी तरह से चलते जाओ आंचल में अंगार लिए, इसी तरह से चलते जाओ आंचल में अंगार लिए, वक्त तुम्हारी राह देखता है फूलों के हार लिए। धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद। और अब वर्ष 2025 के युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। असमिया में पुरस्कृत सुप्रकाश भुइयां। Awarded in Bengali to Sudeshna Moitra. Sudeshna Moitra, a Bengali poet and writer, was born on 28th of June 1990 in Barasat, North 24 Parganas, West Bengal. Sudeshna Moitra. Awarded in Bodo language to Amar Khungur Boro.
Amor Khungur Boro, a poet in Bodo, was born on 5th of December 1994 at Uttar Gijirkuchi village in Udalguri district of Assam. He knows Assamese, English and Hindi. He has published 2 poetry collections. He is recipient of Lekhak Sambardhana 2021 from Assam Bhasha Gaurav Achoni, Government of Assam. Angasur is a collection of 67 poems reflecting the socio-political ideologies and issues of the tribes of Northeast India. Drawing inspiration from real-life experiences and observations, the poet beautifully delves into a wide range of themes encompassing social, political, cultural, linguistic, and literary concerns. Written in free verse, these poems express dissent and sorrow while exploring human emotions such as desire, regret, romance, dreams, nihilism, and existentialism. As such, Sahitya Akademi is happy to confer its Yuva Puraskar in Bodo to Amor Khungur Boro for his collection of poems Angasur. Amor Khungur Boro. Awarded in English language to Advait Kottari. हिंदी में पुरस्कृत पार्वती तिर्की. Award in Kannada to Dilip Kumar R. Dilip Sahitya Akademi is happy to confer its Yuva Puraskar in Kashmiri on Saika Seher for her work of criticism Harfaz Harfaz Saag. Saika Seher. Award in Konkani to Glynis Dias. मैथिली में पुरस्कृत नेहा झा मणि है. नेहा झा मणि. As such, Sahitya Akademi is happy to confer its Yuva Puraskar in Manipuri to Akoijam Jiten Singh for his epic Khoyum Nongdam Kao. मराठी में पुरस्कृत प्रदीप कोकरे. नेपाली में पुरस्कृत सुवास ठाकुरी कर रही है. सुवास ठाकुरी. Sahitya Akademi is happy to confer its Yuva Puraskar in Odia on Subrat Kumar Senapati for his short story collection Kadam Ban. Subrat Kumar Senapati. पंजाबी भाषा की प्रखर कवयित्री मनदीप औलख, जिन्हें आधिकारिक और तौर पर मनदीप कौर के नाम से जाना जाता है, अंतसरय आंगणे के लिए राजस्थानी भाषा में युवा पुरस्कार प्रदान करते हुए प्रसन्नता का अनुभव कर रही है. धीरज कुमार पांडे. Sahitya Akademi is happy to confer the Yuva Puraskar to Santali in Santali on Fagu Baske for his poetry collection Ada Sav in Fagu Baske. सिंधी में पुरस्कृत मंथन बाचानी. मंथन बाचानी. Award in Tamil to Lakshmi Harti.
in Tamil on Lakshmi Harti for his short story collection Koothondaru Kuditaru, Lakshmi Harti. Award in Telugu to Prasad Suri. Sahitya Akademi is happy to confer its Yuva Puraskar in Telugu on Prasad Suri for his novel Mai Ravana. Prasad Suri. उर्दू में पुरस्कृत नेहा या नेहा रुबाब। साहित्य अकादमी नेहा को उनकी उत्कृष्ट जीवनी कृति महजरुल हक तहरीक आज़ादी हिंद का फरामोश करदा कायद के लिए उर्दू भाषा में युवा पुरस्कार प्रदान करते हुए प्रसन्नता का अनुभव कर रही है। नेहा। आज़ादी, भारत को आज़ादी मिले उसके पहले देश में किसी साहित्यकार ने आज़ादी का नारा दिया हो मेरी स्मृति में नहीं आ रहा है। और दूसरा नारा दिया था नारी नर सम होए रहे, स्त्री और पुरुष में समानता सह अस्तित्व। इसी के साथ तीसरा नारा दिया था निज भाषा उन्नति है। तो युग प्रवर्तक की जो दृष्टि, जो उसका विज़न होता है, उसका अद्भुत प्रमाण है आपको भारतीय हिंदी में दिखाई देता है। संप्रति युवा लेखन के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। इसको एक नाम दिया गया, इतिहासकारों ने युवा लेखन नाम दिया है, और उसके साथ साथ उसकी परिभाषा करते हुए उसे युवा आक्रोश के रूप में परिणत कर दिया। युवा आक्रोश उसका मुख्य लक्षण है। युवाओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। एक आंकड़े के अनुसार 85 लाख बालक प्रतिवर्ष जन्म लेते हैं। इसका मतलब 85 लाख युवा प्रतिवर्ष आते हैं। उसका परिणाम है कि इस देश में 65% युवा है। उसका सुपरिणाम यह है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा युवा राष्ट्र है। मुझे आमंत्रित किया गया तो कहा गया समापन वक्तव्य है, और समापन वक्तव्य मैं समझती हूँ कि यज्ञ में अंतिम आहुति होती है। आप जिस सामग्री से आहुति देते हैं तो बची हुई जो थोड़ी सी सामग्री होती है उसी से आपको आहुति देनी होती है। तो मुझे संक्षेप में ही अपनी बात रखनी है, और बहुत सारी बातें जो है प्रोफेसर दीक्षित जी ने, माधव कौशिक जी ने, स्वागत वक्तव्य में हमारी सचिव पल्लवी जी ने आपके सामने रखी हैं। और इस तरह से विकसित भारत का लक्ष्य अगर पूरा करना है, उस मंजिल तक पहुंचना है, तो युवा शक्ति को साथ लेकर के चलना होगा। और हमारे युवा रचनाकार जो लिख रहे हैं उस पर भी हमारी दृष्टि, हमारी निगाह होनी चाहिए। मैं जाते जाते अपने युवा रचनाकारों से इतना ही कहना चाहूँगी कि जब आप सृजन के फलक पर आते हैं, सृजन में बहुत बड़ी क्षमता होती है समाज को बदलने की, आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करने की, और अतीत के साथ वर्तमान। आपका बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही इस वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अर्पण समारोह संपन्न होता है। इन द एंड वील हैव अ ग्रुप फोटोग्राफ ऑफ ऑल द अवॉर्डीज विद द डिग्निटरीज ऑन द स्टेज।